وہ آج ہمیں اپنے شہر کے اندر دیکھنا پڑ رہا ہے۔ سوال بنتا ہے اس جگہ پر مسلمان قوم کے لیڈروں سے، مذہبی پیشواؤں سے اور جو ذمہ دار ہیں ان سے کہ آخر آپ نے قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعمیر کرنا ہے۔ جب کرسچن اسکول میں جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ صبح صبح سب سے پہلے جیسس از دا سن آف گاڈ، یہ پڑھتے ہیں۔ لیکن کتنی میٹنگیں کی گئی پورے شہر کے اندر کہ اگر ایک سال کے عرس اور جلسے اور اجتماع کا پیسہ بچا لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خصوصی پیغام مسلمان قوم کے نام دینا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر میسور کے مسلمانوں کے نام ایک درد بھرا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میسور کے تمام مسلمانوں کے موبائل کے اندر وہ فوٹو اور وہ آڈیو ریکارڈنگ آ چکی ہوگی واٹس ایپ کے ذریعہ سے، جو بہت زیادہ وائرل ہوا ہے۔ کولمبیا ایشیا ہاسپٹل کے آگے پیٹرول پمپ کے پاس کھینچی گئی وہ تصویر، جس نے سارے مسلمانوں کے دل کو بے چین کر دیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو ہم سنتے تھے کہ فلاں جگہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے، وہ آج ہمیں اپنے شہر کے اندر دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میرے دوستو، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے آپ، میں بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مخصوص تنظیم نے ایک مکمل سازش تیار کی ہے، ایک مکمل کانسپریسی تیار کی ہے، وہ کسی خاص صوبے کو، کسی خاص شہر کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے، بلکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے برانچز تب پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر شہر میں بلکہ ہر دیہات تک میں بھی ان کے برانچز ہیں، ان کے کام کرنے والے ہیں، ان کے ممبرز ہیں۔ اور یہ خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مسلمان قوم کی لڑکیوں کو، کہ ان کو کسی طرح بہلا پھسلا کر کے، لالچ دے کر کے، ان کو محبت کے جال میں پھنسا کر کے کسی بھی طرح ان کو اپنے طرف لانا ہے، ان کا ایمان چھین لینا ہے۔ میرے دوستو، یہ تمام پورے ملک ہندوستان میں یہ مکمل سازش کے تحت، پوری پلاننگ کے تحت، پوری منظم طریقے سے اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے۔ آپ اس بات کو جتنا جلدی مان لیں اچھا ہوگا۔ کیونکہ یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں ہے، بلکہ دوستو یہ مکمل طور پر منظم طریقے سے اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے۔ اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح مسلمان لڑکیوں سے بات کیا جاتا ہے، کیسے بیچ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ اور اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، کس طرح اپنی رغبت اسلام کی طرف دکھا کر کے ان کو اپنی طرف لانا ہے۔ یہ مکمل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ جو ان کی تنظیم سے جڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس طرح مسلمان قوم کی لڑکیاں راغب ہوں گی۔ اور اس کا نتیجہ دیکھیے کہ پورے ہندوستان میں روزانہ 25، 30، 40، 50 معاملات روزانہ ہو رہے ہیں۔ اتنا بڑا ملک ہے، کہیں نہ کہیں یہ معاملہ روزانہ ہو رہا ہے۔ اور ہر دن آپ اخبار میں، نیوز میں، پیپر وغیرہ میں یہ آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز کہ فلاں نے اپنا نام بدلا، مذہب بدلا اور فلاں سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ 1، 1.5، 2 مہینے میں ہی اس کی لاش کسی کچرے کے ڈبے میں یا کسی نالے کے اندر پھینکی ملتی، یہ الگ بات ہے۔ لیکن دوستو، یہ ایک مکمل حقیقت ہے جو کہ انجام دیا جا رہا ہے۔ میسور شہر میں کتنے کالجز، کتنی یونیورسٹیاں، کتنے اسکول ایسے ہیں جس کے اندر اس تنظیم سے جڑے ہوئے لوگ اپنے اس ٹارگٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ سوال بنتا ہے اس جگہ پر مسلمان قوم کے لیڈروں سے، مذہبی پیشواؤں سے اور جو ذمہ دار ہیں ان سے کہ آخر آپ نے اس قوم کی بیٹیوں بیٹوں کے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے اسٹیج ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا پیغام دیا جاتا ہے امت کو؟ کون سا درد مندانہ اپیل کی جاتی ہے قوم کی ملت کی بیٹیوں سے اور بیٹوں سے؟ مذہبی خرافات، فروعی مسائل کے اندر اختلافات، مسلکی اختلافات کو ثابت کرنے پہ مکمل زور دیا جاتا ہے آج ہماری اسٹیجوں سے۔ اور یہ ہر ایک مسلک کے اندر نظر آتا ہے، کوئی خاص مسلک اس میں نہیں ہے، سارے اس حمام کے اندر ننگے ہیں۔ اپنے اجتماعات میں، اپنے جلسوں میں، جہاں قوم کا درد پیش کرنا تھا، لوگوں نے آپ کو بلایا تھا کہ آپ قوم کی بیماریوں کا علاج کر سکیں، آپ اس کو میٹھی گولی دے کر کے سلاتے ہیں۔ اور قوم کے لیڈران، ذمہ داران، مالدار لوگوں نے، پیسے والوں نے نیکی کس چیز کو سمجھا ہے؟ مسجد کی میناریں کتنی بلند ہونی چاہیے، مسجد میں کتنا مہنگا AC لگنا چاہیے، کتنا مہنگا کارپیٹ بچھایا جانا چاہیے، کس طرح مدرسہ ماڈرنائز ہونا چاہیے۔ یہ اور اس طرح کی چیزوں کو ہی نیکیاں ہم نے سمجھا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ نیکیاں نہیں ہے، یہ بھی نیکیاں ہیں، لیکن کیا صرف چند نمازیوں کے لیے زمین پہ مسجد بنا لینا ہی نیکی ہے؟ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعمیر کرنا یہ نیکیوں میں نہیں آتا ہے؟ یہ بھی نیکیوں میں آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری یہ کمی رہی ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے اس کو نیک کام کے طور پہ پیش نہیں کیا۔ ہم نے نیکی کے طور پہ صرف یہ بتایا کہ جلسے کرو، اسٹیج بناؤ، بڑے بڑے اجتماعات کرو، بڑے بڑے عرس کرو، ہم نے صرف یہ نیکی پریزنٹ کی ہے آپ کے سامنے۔ ہم نے یہ نہیں بتایا ہے کہ قوم کے بچے جب غیروں کے اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ان کو سب سے پہلے پرے کیا جاتا ہے،
मूर्तियों के सामने हाथ जुड़वाए जाते हैं और उसके सामने हिंदुआना भजन या क्रिश्चियन लोगों का जो अपना तराना होता है वो गवाए जाते हैं। हमारे बच्चे जब क्रिश्चियन स्कूल में जाते हैं क्या पढ़ते हैं सुबह सुबह? सबसे पहले द जीसस इज द सन ऑफ गॉड, ये प्रे किया जाता है कि नौजुबिल्लाह यीशु मसीह अल्लाह के बेटे हैं। आप जरा बचिए, सोचिए, जो बच्चा इसको जान के या अनजाने में बोल रहा है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे बोल रहा है, क्या उसका ईमान बचेगा कि वो यीशु मसीह को अल्लाह का बेटा कहें या मूर्ति के सामने अपने सर को झुकाएं, सरस्वती के भजन गाएं? उनका ईमान कैसे बचेगा? जब ईमान ही नहीं बचेगा तो फिर हमारे कौम के दूसरे मामलात से हमें क्या गर्ज हो सकती है मेरे दोस्तों? तो मेरा एक पैगाम है, मेरे एक दिल की बात है जो मैं आपके सामने कर रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ हो सकती है क्योंकि इसके जहन में एक मखसूस तरह की बात रख दी गई है। उनका जहन ये कबूल ही नहीं कर सकता है, हाँ स्कूल बनाना भी नेकी है, हाँ कॉलेज बनाना भी, यूनिवर्सिटी बनाना भी नेकी है, ये उनका जहन कबूल ही नहीं कर सकता है। आपकी मस्जिद में कितने नमाजी आते हैं? कितनी सफ़ें पूर होती हैं आपकी मस्जिद में? आप जरा अंदाजा करके लगाइए, जुमा और ईद को छोड़ करके, और अभी रमजान आने वाला है तो फिर 1 महीने का मुसलमान भी आएगा। इनको अगर छोड़ दें, 5 वक्ता नमाज में आपकी मस्जिदों में कितने नमाजी होते हैं? 1 2 3 4 5 सफ़ें। मस्जिद कितनी बड़ी होती है, उसके अंदर कितने इंतजामात होते हैं? और इतने ही परसेंट, मुझे लगता है कि मुसलमान कौम के अंदर 15 से 20% लोग, अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूं या कम बोल रहा हूं तो मेरी परसेंटेज में कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा लोग मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं। 80% लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं पाबंदी के साथ। और मुसलमान कौम के 99.5% बच्चे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आप इस बात को सोचिए कि इस बड़ी तादाद में जब हमारी कौम के बच्चे गैरों के स्कूल कॉलेज में पढ़ने पे मजबूर हैं तो ये हमारी कमी की वजह से है, हमारी ही वजह से है कि आज हमारे बच्चों को गैरों के साथ स्कूल में जाकर के पढ़ना पड़ रहा है, उनकी तहजीब और तरीके को अपनाना पड़ रहा है, उनके तौर तरीके से पढ़ना पड़ रहा है। जो स्कूल कॉलेज वाले कानून बनाते हैं उसके हिसाब से उनको चलना पड़ता है। फिर आप क्यों रोते हैं कि आपके कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग जा रही हैं? क्यों आप रोते हैं कि कौम के बच्चों के हिजाब नोचे चले जा रहे हैं? क्यों रोते हैं कि हमारे कौम की बच्चियां गुजर रही हैं और उन पर कलर और रंग डाले जा रहे हैं और उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको स्कूल में, कॉलेज में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है? अगर कोई बच्ची रोजा रख करके आ रही है तो जबरदस्ती उसका रोजा तोड़वाया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? अगर आपके अपने कॉलेजेस होते, अपने स्कूल होते, अपनी यूनिवर्सिटियां होती तो किसकी हिम्मत थी कि वो इस तरह के काम कर सकते थे? आप अपना कानून बना सकते थे, अपने तौर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते थे। मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तो नहीं कर सकता, बहुत चंद लोग ऐसे हैं जो इस मैदान में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कौम का दर्द है और उन्होंने स्कूल बनाया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश करते हैं, मुसलमान बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल बनाने की कोशिश करते हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस पुरफतन माहौल में आपने इस नेक काम को अंजाम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल को देखता हूं तो दिल खुश होता है जहां हमारे बच्चे टोपी पहन के खड़े होते हैं और टोपी पहन के क्लास कर रहे होते हैं। उनके क्लास में जहां इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथ पढ़ाया जाता है वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामियात का भी दर्स दिया जाता है। मेरे दोस्तों ये हो सकता है अगर आप चाहें, पूरी कौम चाहे। कितनी मीटिंगें की गई, ये वीडियोस, ये फोटोज देख करके हर एक के सीने में आग लगा। आपकी ईमान की अलामत है ये, आपका जमीर जागना, आपको गुस्सा आना, ये आपके ईमान की अलामत है। लेकिन कितनी मीटिंगें की गई पूरे शहर के अंदर कि भाई अब ये आग हमारे शहर में आ चुकी है, इसके लिए क्या करना है? इसके तदारुक के लिए क्या हम मिल बैठ करके बैठे? क्या हम सर जोड़ करके बैठे? कितनी मीटिंगें की गई शहरों में, उलमा के जरिया, लीडरान के जरिया से कोई तदारुक पेश किया गया, कोई लाही अमल तय किया गया। मेरा दावा है कि अगर 1 साल तक, हर एक मुसलमान से कह रहा हूं, पूरे शहर के मुसलमानों से, कलमा गो लोगों से, कि अगर 1 साल के उर्स और जलसे और इज्तिमा का पैसा बचा लेना तो शहर में एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी या एक बेहतरीन कॉलेज बन सकता है। सिर्फ 1 साल के इज्तिमा, जलसों और उर्स का पैसा, खवालियों का पैसा अगर हम बचा लें तो हमारा बेहतरीन कॉलेज बन सकता है जो हमेशा जमीन पर कायम रहेगा। ये कितनी बड़ी बात है मेरे दोस्तों। और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का पैसा बचाएं। मैं ये नहीं कहता कि ये नेकियां नहीं की जाए, ये काम ना किए जाएं, किए जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्हीं को अगर इस्तेमाल किया जाए कि ऐसे जलसों से, स्टेज से, ऐसे उर्स से, ऐसे इज्तिमा से ये पैगाम दिया जाए या लोगों को इस बात के लिए तैयार किया जाए, उनकी जहनी तौर पर उनकी तैयारी हो कि हमें स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाना है और आपको इसके लिए मदद करना है। बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में जो ऐसे हैं, एक आदमी चाहे तो अकेला ही स्कूल बनवा सकता है, कॉलेज बनवा सकता है। ऐसे अल्लाह ताला ने ऐसे लोग रखे हैं इस जमीन के ऊपर, उनके दिलों में जज्बा है लेकिन कोई आगे बढ़ के काम करने वाला नहीं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमें जरूरत इस बात की है कि हमें सबसे पहले तो इन चीजों पर गौर करना है कि किस तरह हमें इन मुसलमान लड़कियों को और मुसलमान लड़कों को इन फितनों से बचाना है। फिर हम इसका बदल क्या पेश कर सकते हैं, इस पे गौर करना है। और किस तरह मुसलमानों के जहन में ये बात डाली जा सकती है, इस चीज के लिए हमें लाही अमल तय करना है, मीटिंगें करनी है, उलमाए किराम को, लीडरान को, और बिला तफरीक के मसलक व मशरब हमें मिलजुल करके बैठ करके इस मौजू के ऊपर काम करना है। तभी इसका
तदारुक हो सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है। वरना तो सिर्फ व्हाट्सएप पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए और हाथ मलते रह जाइए, सीने में आग लगी रहेगी, लेकिन इसको बुझाने वाला कोई नहीं होगा। ये तो अभी का वक्त है, आप आने वाले वक्त को देखिए, आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा बुरा है। आपको नहीं पता कि कितनी बड़े तौर पे, कितनी बड़े पैमाने पे साजिशें की जा रही हैं। आप उनके बयानात नहीं सुनते हैं रात दिन, जो मीडिया के सामने, कैमरे के सामने अलल ऐलान आकर के वो देते हैं कि हम फलां राष्ट्र बना लेंगे, फलां राष्ट्र बना लेंगे, ऐसा कानून बना लेंगे। क्या कोई मुसलमान इस तरह की बोलने की जुर्रत कर सकता है? वो अलल ऐलान बोलते हैं, उनके मजहबी पेशवा बोलते हैं, उनके सियासी लीडरान बोलते हैं, और दीगर लोग भी मुकम्मल खुले तौर पर इस बात को अलल ऐलान बोल रहे हैं, और मुसलमान कौम हाथ पे हाथ धर के बैठी है। मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी बातें निकलती चली जाएंगी, बहुत सारी बातें निकलती चली जाएंगी, लेकिन 2 बूंद ही काफी अगर कुछ असर करे। ये एक मेरे दिल का जज्बा है, मेरा एक जरिया है आप तक बात पहुंचाने का। तो मैंने इस जरिया को, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया है कि शायद अगर 2-4 लोगों के दिलों में ये बात आ जाए तो अल्लाह करे कि किसी के दिल में उतर आए और इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाए। और याद रखिए कि हम जितना ज्यादा आवाज उठाएंगे, इन चीजों के बारे में बात करेंगे, नौजवान बात करेंगे, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट इसको आवाज उठाएं, बोलें, लीडरान से बोलें, मजहबी पेशवाओं से बोलें कि इस मामले में क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है। जब हम सब मिलकर के बोलेंगे तो इंशाअल्लाह मजहबी पेशवाओं को भी और लीडरान को भी, सियासी लीडरान को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि वाकई जब कौम के बच्चे, कौम की बेटियां, कौम के बेटे इतने बड़े पैमाने पे बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इसको करना चाहिए और उनको करना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप इसके लिए आवाज उठाइए, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये दर्द दिल दूसरों तक पहुंच सके। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमें अमली तौर पे कुछ करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह हम में से जिससे जो हो सके, इमाम है मस्जिद का मुअज्जिन है, मदरसे में पढ़ाने वाला है, अगर कोई स्कूल का टीचर है, कोई लेक्चरर है, कोई ऑफिसर है, बड़े ओहदे पर है, कोई सियासी लीडर है, कोई पैसे वाला है, दौलतमंद है, कारोबारी है, बिजनेसमैन है, हर एक अगर अपने अपने तौर पर, अपने पैमाने पर अगर काम करेगा तो इंशाअल्लाह बूंद बूंद से दरिया बन जाता है। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।